Hello, everyone. My name is Ali Farhan Bhatti. I'm the founder of The Whispering Fragrances, aka The Whisperer. Today, I have my very dear friends with me, Ajwad Khan Niazi Sahab and Khidr Sahab. We're all wet shaving enthusiasts. I let them introduce themselves. So please go on over to you, Khidr Sahab. Yeah, all right. My name is Khizr. I've been in the wet shaving. I've been into wet shaving since around December 2024, and of course, it's been super rewarding. And we got into contact through the entire Whispering Fragrance crops, and I'm looking forward to a very insightful conversation. Likewise, likewise. Khan Sahab, over to you. मेरा नाम अजवद है, अजवद खान नियाज़ी। और मैं तकरीबन कह लें कि 2 साल पहले वेट शेविंग की हॉबी में आया और आते साथ मैंने बस पागलों की तरह चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कर दी, जैसे हम Zabardast, सब करते हैं। फिर Zabardast. तकरीबन कोई 5-6 महीने पहले अली भाई के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। इनका सोप लिस्टेड था दराज़ के ऊपर, तो मैंने ऑर्डर किया, वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई। करते-करते बॉन्ड इतना डेवलप हो गया कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं एक साथ इकट्ठे। Absolutely. अबाउट खिज़र भाई और मेरी भी डिस्कशन हुई थी रेडिट के ऊपर एक। खिज़र भाई ने बड़ा अच्छा रिव्यू लिखा था ट्रीट जेनेसिस रेज़र का। वहाँ से हमारी बात शुरू हुई क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल इस हॉबी के अंदर पाकिस्तान में ढूँढना बहुत मुश्किल काम है। I totally agree. तो I जब वो totally मिले, agree. तो हम तीनों का ये था कि इस अपॉर्च्युनिटी को ज़ाया नहीं होने देना हमने। हमने उसे पकड़ा हुआ है। हम्म। सो आगे देखते हैं अब हम क्या बातचीत होती है मज़े की। अच्छा, मैं थोड़ा इनफैक्ट बताता अजवल चलूं। भाई ने मुझे अली भाई का बताया था एंड थ्रू हिम आई सॉर्ट ऑफ गॉट इन टच विद अली भाई एंड अली भाई वाज ऑब्वियसली नाइस इनफ टू रिस्पोंड तो यस हम तीनों जो हैं मतलब इससे लिंक हुए हैं हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, मैं थोड़ा बताता चलूं द हिस्ट्री एंड व्हाई आई स्टार्टेड द विस्परिंग फ्रेग्रेंसेस, specifically why I started making shaving soaps. The problem is, back in the days, I used to get my shaving soaps from USA and Europe and also China. And each shaving soap usually used to cost me around 25 to $30 one shaving soap, which which is obviously it's very very expensive. It costs me an arm and a leg. And on top of that, it takes about 3 to 4 weeks, the shipment time and all. So, something clicked in my mind, and then I came up with this idea. Why not produce shaving soaps locally in Pakistan? Since nobody was making shaving soaps in Pakistan, and I am fortunate enough to be the first person ever in the history of Pakistan who is actually making shaving soaps. And so, after a vigorous testing period, lots of failures, lots of experimentation, I came up with the shaving soap which we have now in our lineup. Up the thing is, unfortunately, people in Pakistan, and I'm talking about the masses, they don't know what a shaving soap really is. People, the best they can get is a shaving cream. Some of them they use canned shaving soaps and sorry, shaving foams and gels. The thing with with shaving soap is the lather of a shaving soap is infinitely flexible. You can make it extremely thick. You can make it extremely thin. Really depends on the kind of lather you like, right? This is something Pakistanis don't know. I'm going to share a very funny thing somebody said to me a few weeks ago. Somebody texted me on WhatsApp, and the person asked me, "Sir, is your shaving soap like a hair removal cream, like Veet?" I laughed so much, and I was like, "Bro, it's a shaving soap. You use it like a shaving cream. Those Gillette shaving canned foams and gels. It's similar to that. You need to have a shaving brush to create a lather on your face along with the shaving soap. So it's not a hair removal product. It's something to give you cushion and protection when you use a razor. It's just really funny, which really indicates the lack of knowledge of our Pakistani people in general. I remember when I was in the UK, we could find a huge variety of shaving soaps there in the local market. It was readily and easily available across the market. And so is the case with the West in general. So, what do you guys think about shaving soaps? What do you think makes shaving soaps so special? Kizar Saab, over to you. all right so two things primarily firstly the fact that because it's a shaving soap it's not a cream in a tube or anything on those lines तो उस वजह से वो last ज्यादा देर करता है मतलब I
अगेन बीइंग द नर्ड दैट आई एम, जो जब मैं प्रो रासो यूज करता हूँ तो मैं लिटरली डेट लिखता हूँ कि किस पे मैंने पहली दफा उसको इस्तेमाल करना शुरू किया और वो खत्म कब हुआ है, एंड अ कपल ऑफ टाइम्स इट हैज लास्टेड मी अराउंड 8 to 9 months. तो दैट आई वुड से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह लें या जो वैल्यू फॉर मनी है, एक तो वो चीज मुझे वो काफी इंटाइस करती है अबाउट दिस. दूसरी चीज है जस्ट जनरली द ईज ऑफ यूज, एज यू ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि यू नो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि आपको जिस किस्म का भी लेदर पसंद है आप उस तरह का बना सकते हैं. तो आई थिंक दीज टू थिंग्स रियली स्टैंड आउट फॉर मी एज वेल. And what do you think, Ajwad Khan Yazdi Sahab? सर मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई ना, तो मैंने स्टार्ट किया जॉली की शेविंग क्रीम से. तो मैंने उसे स्टार्ट किया, तो मुझे पहली बार इरिटेशन नहीं हुई शेव करते हुए. तो मैंने जितने पाकिस्तान के लोकल ब्रांड थे, सैमसॉल, एडमिरल, टच मी, मेडिकैम, सारे मैंने इकट्ठे कर लिए 2 दिन के अंदर अंदर ही. फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता ना शौक बढ़ना शुरू हुआ. जो कोई बाहर जा रहा है मेरा जानने वाला, मैं जा रहा हूँ, को आ रहा है, एक ही डिमांड जा रही है उनको कि भाई ये सोप ले आना, ये ब्रश ले आना, ठीक है. तो काफी कुछ इकट्ठा कर लिया, प्रोरासो इकट्ठी कर ली, टॉप्स को यूज कर लिया, टबैक उसको कर लिया, चैला, बेरिस्टर, मैं नहीं कहता सारे कर लिए, बहुत ज्यादा है दुनिया में, बट एक हैंडफुल अमाउंट ऑफ सोप्स एंड क्रीम मैंने यूज की है. उसके बाद मैं दराज के ऊपर देखता रहता था डेली ना, रात को मेरा काम होता था कि मैंने सर्च करना है शेविंग सोप आया है कि नहीं आया, किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया. तो मैंने सर्च किया, तो मेरे सामने ना विस्परिंग फ्रेग्रेंसेस का सोप आ गया. ऑब्सिडियन ब्लूम एंड साइलेंट एको, उस टाइम 2 होते थे. तो मैंने ऑब्सिडियन ब्लूम के सेंट नोट्स पढ़े, मैंने ऑर्डर कर दिया. अली भाई से मेरी दराज से भी बात हुई, वो शिफ्टेड ऑन मूव्ड ऑन व्हाट्सएप, वहाँ भी बात हुई. मैंने यूज किया, अगले दिन सोप में हैरान हो गया. इतना हैरान कि आप कहें कि अभी जो मैंने हिस्ट्री दी कि मैंने बैरिस्टर एंड मैन को भी यूज किया, चैला को भी किया, सबको किया यार. इतने महंगे सोप्स, इतनी मैं उसके पीछे एक प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, मुझे किसी को कहना पड़ रहा है, एहसान अलग लेना पड़ता है, कोई ला रहा है, कर रहा है आपके लिए. और जब मैंने पाकिस्तानी सोप यूज किया अली भाई का, मैं हैरान हो गया यार. मैं कही यार इतने कम पैसों में इतनी अच्छी चीज, Thank you. That really means a lot. Thank थोड़ा सा you. सोप, बहुत ज्यादा लेदर, और लेदर एयर ही नहीं हो रहा है. इवन टेलर ऑफ ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट, आप थोड़ा सा उसमें पानी ज्यादा डाल दो, वो बिल्कुल एक एरी सी चीज बन जाएगी जो आपको बिल्कुल कुशन नहीं देगी. Exactly. तो फिर आपको हुआ पता ये है, कि एक जो अच्छी बात है कि in the whispering fragrances we only use all natural vegan products, ingredients. It has been vigorously tested on skin. I have been using my shaving soaps for the past over a year now, and they perform amazingly well. अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज को हाईलाइट करना चाह रहा था, जो कि है lack of availability of shaving razors and other shaving tools in Pakistani market. What do you guys think about that? So I've been to different local markets in Pakistan, and I remember when I couldn't find a decent a safety razor in Pakistan. People also have been asking me weird questions like, so sir, why do you use a safety razor? I mean, it's very funny you ask me that, because as far as I know, a safety razor which has one single blade and it has a blade on each side, a safety razor is much safer for your skin. It cuts your hair on surface level, which makes it safer, medically proven. A cartridge razor, on the other hand, excuse me. So people don't understand the mechanism of cartridge razor. They have multiple blades. So one stroke of the razor, you're basically taking 3 or 4 or 5. Please excuse me. You're basically taking 3 or sometimes 5 blades across your skin. It's more dangerous. And then it also, the thing which happens with a cartridge razor is that it cuts your beard hair beneath the surface level, which consequently can give you ingrown hair. It can also cause infection if things get worse. So that's what I think. That's my stance on safety razors. What do you think, Hidra Sahab? Yes, so मेरी भी जो स्टोरी है ना वो काफी सिमिलर है, because of course this guy behind me, big fan of this guy, and ये जिलेट के ऐड में आते होते थे, और छोटे होते मेरी प्यूबर्टी मस्टैच थी that I really wanted to get rid of. और ये ऐड देख के मतलब my path was set in stone कि मैं तो जिलेट ही लेसा.
और मैं तो जैसे मुझे मौका मिलेगा आई एम गोइंग टू बाय अ मैक 3 और आई एम गोइंग टू बाय अ फ्यूजन, और मैं जो हूँ बस जो है ना शेव करूंगा। तो एक एस्पिरेशनल वैल्यू उस वक्त तो थी, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई थिंक फ्रॉम 2019 अंटिल 2024 मैंने जिलेट ही यूज किया और वो सारा कुछ हुआ। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, आप सबको याद होगा पेंडेमिक के बाद जो कार्ट्रिजेस आ रही थी, एक तो आई थिंक दे वर नेवर मेड इन पाकिस्तान, लेकिन उससे पहले पता नहीं किधर से आती थी, लेकिन उसके बाद आई थिंक इट वाज नॉर्थ अफ्रीका या मिडिल ईस्टर्न मीना रीजन से आना शुरू हो गई थी। फॉर सम रीजन उनकी क्वालिटी बहुत खराब थी, मतलब अगर प्रीवियसली आपको 6 शेव्स अच्छी मिल जाती थी, तो अब आपको 2 मिल रही थी अच्छी। एंड स्लोली आई आल्सो फेल्ट द नीड, मतलब शेविंग बिकेम लेस एंजॉयबल बिकॉज इरिटेशन बहुत होना शुरू हो गई थी, एंड इट वाज वेरी हार्श ऑन माय स्किन। और मैं यही सोचता था कि मैं 2019 में भी यही रेजर यूज करता था, मतलब इज देयर समथिंग रॉन्ग विद मी, मेरी स्किन खराब हो गई है, मेरी स्किन ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। आई हैड अ वेरी सॉर्ट ऑफ हार्ड टाइम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और एक ऐसा टाइम था जब जस्ट टू सॉर्ट ऑफ सेफगार्ड माय स्किन मैं रोज शेव भी नहीं करता था, मतलब मैं 3 3 दिन बाद शेव कर रहा हूँ और वो सब कुछ कर रहा हूँ, जो कि ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन आई दैट वाज नेवर आइडियल। तो फिर जब वही आप वाली बात, जब मुझे थोड़ी सी हवा लगी ऑफ द सेफ्टी रेजर आइडिया, तो अगेन इवन इवन माय डैड, जिनके खुद के वालिद साहब वो यूज करते थे सेफ्टी रेजर यूज करते, सो माय डैड नेवर यूज्ड द सेफ्टी रेजर बाय द वे, मतलब उन्होंने शुरू ही जिलेट G2 होता था उस वक्त, उससे शुरू किया था। Yeah. तो मेरे वालिद साहब, इवन माय डैड वाज लाइक कि यार ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो यू आर रिग्रेसिंग एसेंशियली। तो अच्छा, तो मुझे भी अंकल था ने कि कभी बाद सेफ्टी से, रेजर यूज नहीं सॉरी, किया? नहीं अंकल ने अब तक नहीं किया, मतलब अच्छा, अब उन्होंने वाह। किया है, उनको अपनी या अच्छा, I जेनेसिस remember जो my dad. दूसरा लगा। This was जी जी 25 plus years ago. He used to shave with a safety razor back in the days. But then somehow, because of the mass media, people influenced them into giving up safety razors, and they adopted using cartridge razors. And then I've never seen him going back to safety razor ever since. But from the little research I have done, from my little experience, because I've also been wet shaving for the past 20 plus years, almost 25 years now. I'm quite old. Like so from my experience, the problem with cartridge razor is you can't go against the grain, or even across the grain. You can't go with a cartridge razor because the amount of blades which are going in, on your skin, it's hideous. It's horrible, really. So when I switched to using a safety razor, first of all, yeah, I had to go through so much pain. It's not available in Pakistan, so I had to. So I ordered my Mueller R41 first of all. So there is this company. It's online on Instagram. It's called Opula by LS. It's a decent. There are decent people behind this company. So I asked them to please get me this Mueller R41. And then within 3 to 4 weeks, I received my razor. The first time after many years, I used a safety razor. So I switched to using cartridge razors before this venture of mine. So after many years, when I finally switched back to using the safety razor, I was taken aback. The kind of flexibility you get, the kind of skin safety it offers, the amount of it's a very nice smooth shave. Although I also believe that the margin of error is very small, slight mistake, and if you're not a seasoned wet shaver, you have that those chances of cutting yourself, getting nicks or weepers. But I'm just saying, once you have a stable hand, once you know how to use a safety razor, the experience that a safety razor offers is unparalleled. You can't get that same experience with a cartridge razor. Plus, now because I shave every single day, it's part of my morning ritual, and I go for 3 passes every single day. Even with a Mueller R41, I go for 3 passes every single day, and I haven't gotten an ingrown hair in the longest time I can remember. So that's one thing I can't see that thing happening with, in case I was using a cartridge razor. It doesn't happen with the cartridge. You can't go for 3 passes with a cartridge razor. What do you think, Heather? हाँ जी, ये कार्टेज रेजर्स वाली एक तो ये आपने बात की, और दूसरा ये है कि अच्छा वो स्टोरी मैं कंटिन्यू करता हूँ, उसी में इसका जवाब है कि बेसिकली फिर मैंने जब सेफ्टी रेजर्स ट्राई करना शुरू किया, आई ऑब्वियसली ट्राइड एवरीथिंग अंडर द सन, पाकिस्तान में जो अवेलेबल थे। ट्रीट के ही एक दो थे बाय द वे,
दैट वाज रियली बैड बाय द वे। वो मैंने यूज किए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर एट द एंड मुझे भी बाहर से ही मंगवाने पड़े, वो अवेलेबिलिटी वाली बात। लेकिन टुवर्ड्स द एंड बिल्कुल यही वाली सिचुएशन बन रही थी विद द कार्ट्रिज रेजर, दैट आई वाज ऑलमोस्ट अफ्रेड टू शेव एट टाइम्स, बिकॉज आई वाज लाइक कि बेशक नया ब्लेड हो, इट्स रियली गोइंग टू, मतलब बाद में एटलीस्ट अंडर चिन पे तो बर्न्स होने ही होने हैं। तो एक ऐसा भी टाइम आ गया था विच आई थिंक शुड नॉट बी द केस, स्पेशली फॉर समथिंग दैट यू डू एवरी डे। तो ये चीज थी। तो जो आपने बात की कार्ट्रिज रेजर में, जो एक और चीज है ना, विच इज एक्चुअली द फ्लिप साइड ऑफ व्हाट यू वर सेइंग, आपने बोला कि अ लॉट ऑफ पीपल जब वो सेफ्टी से कार्ट्रिज पे आए तो वो वापस नहीं जा सके। उसकी एक वजह इज द कन्वीनियंस दैट द कार्ट्रिज रेजर्स डू गिव यू इफ दे आर शार्प इनफ। एवरी इंडिविजुअल ब्लेड इन अ कार्ट्रिज रेजर अगर वो शार्प इनफ है तो इट्स नॉट द वर्स्ट थिंग एवर। लेकिन वो जब शार्पनेस ही नहीं है, एंड द सिंगल ब्लेड दैट वी गेट इन द सेफ्टी रेजर, जब वो ज्यादा शार्प है तो देयर इज अ क्लियर नाइट एंड डे डिफरेंस आई फील। I completely agree with that stance. What do you think, Ajwat Saab? मेरा जो स्टार्टिंग थी ना वो जिलेट ब्लू 3 से थी, और मेरे ना बहुत इरिटेशन होनी। आई यूज टू यूज जिलेट फोम कैन वाला सिंपल, बहुत इरिटेशन होती थी, एंड आई यूज टू गेट बैड इनग्रोन हेयर्स। और मैं जितना डिले कर सकता था ना अपनी शेव को, मैं उतना डिले करता होता था कि यार ये मुझे काम ना ही करना पड़े। तो फिर मैंने कुछ सर्च किया, कुछ लोगों से पूछा, तो मैं डबल एज रेजर की तरफ आया। तो ओवर टाइम जब मैंने पहले दिन डबल एज रेजर से शेव की, उस दिन से लेके आज के दिन मुझे 104 फ़ारेनहाइट के ऊपर बुखार भी रहा है तो मैंने सुबह उठ के शेव लाजमी किया। वो इतना ज्यादा मेरे अंदर वो चीज डेवलप हो गई, मेरी रूटीन बन गई। मेरा मतलब अगर मैं नहीं सुबह शेव कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग इरिटेटेड, तो मेरे से बच के रहो यार, अभी मेरे से बात ना करना कोई, ये वाला सीन हुआ होता है। तो ये स्विच हर इंसान को मेरा ख्याल है ओवर टाइम कर लेना चाहिए। ये स्विच कर लेना चाहिए देर से जल्दी, क्योंकि अब कुछ भी ना हो, आपकी स्किन को ना भी इशू आ रहा हो, तो प्राइस इतनी ज्यादा है कार्ट्रिज रेजर्स की, इतने ज्यादा वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं कि अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है उन्हें। या अफोर्ड आप कर भी रहे हो इजीली, तो आपको ये ख्याल जब आता है ना कि यार उससे बहुत ज्यादा बेहतर क्वालिटी की शेव मैं उससे कोई 10 टाइम्स कम पैसों में ले सकता हूँ, तो आप क्यों उस तरफ को नहीं जा रहे हो। एंड जो लास्टली बात हो रही थी अवेलेबिलिटी की, पाकिस्तान के अंदर आपको ट्रीट की तरफ से ही रेजर मिलते हैं, जो एक प्रॉपर वेल नोन ब्रांड है, और वो पहले तो प्लास्टिक के थे उनके सिर्फ, अब उन्होंने मेटल के अंदर निकाले जेनेसिस सीरीज। उसके अलावा पाकिस्तान में बनता बहुत कुछ है, बहुत कुछ बनता है पाकिस्तान में। सियालकोट के पास फैक्ट्रीज लगी हुई है, एवरीथिंग दे मैन्युफैक्चर हियर, बट वो सब यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे रहता कुछ नहीं है। अब मुझे भी बहुत टाइम लगा, लिंक्स बने, लोगों से मिले, करते 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 मेरी उन तक रसाई बनी, और मैंने वहां से वो चीजें लेनी शुरू की। बट अगेन वो फिर भी वो क्वालिटी नहीं है जो आपको बाहर से मिलेगी। तो एक ये अवेलेबिलिटी का फैक्टर, और दूसरा अवेयरनेस का फैक्टर, ये हमारे यहाँ पे आ जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी लोग बैप्टाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। अच्छा, मुझे एक बड़ी मजे की बात याद आ गई है। अवेलेबिलिटी के साथ साथ एक और बात मुझे याद आ गई है। अच्छा, आई हैव स्पेंट सम 3 years in the UK. वहां पर the minimum wage rate per month is so I think it's roughly around 2,000 pounds. So the minimum wage or minimum salary for a full-time worker in UK is 2,000 pounds, more or less. So in contrast, if you're a full-time worker in Pakistan, the minimum wage that you get in Pakistan is 35,000 rupees, right? Which is less than 100 pound, British pound. It's a Ali bhai, big sorry to conundrum, cut it's you a off. big dilemma. Ali, sorry to cut you off. 35,000 मिनिमम वेज है, बट कितने लोग हैं जिनको वो भी नहीं मिल रही है? नहीं मिलती एग्जैक्टली। यहाँ पे लोगों को जो मैक्सिमम मिलती है वो 30,000 रुपीज के प्लस माइनस होती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि if somebody is making 2,000 pounds, let's say 2,000 pounds a month, he or she has more opportunities to buy branded items. They have more opportunities to get better items, compared to somebody who was born in Pakistan who only makes less than 100 pounds a month. They can't afford to buy a shaving soap worth 25 pounds, 20 or 30 pounds, So that's a very big conundrum of our society, of our country. I think that's something which the government needs to work on, and we as a society also need to work on collectively. क्योंकि मेरे ख्याल से this is something I honestly believe in कि
we Pakistanis are not some sort of substandard human beings. We also should get the same sort of quality of life that is being offered to somebody who's living in the UK, USA, China, Australia, or anywhere else for that matter. Do you understand my point? Kirza, what do you think? हाँ जी, बस थोड़ा सा I just give like a slight idea to this के slight response to this के you're right के मतलब वो shaving is like really important और वो सारा कुछ, of course for a lot of people it's not of paramount importance, लेकिन ये बात जरूर है कि क्योंकि वो अवेलेबिलिटी नहीं होती उस वजह से a lot of people don't even know what's out there, yeah, what they can actually get. And we also need to touch upon जो पाकिस्तान में नाई से शेव कराने वाला कल्चर है, that is prevalent amongst a massive section of people. तो वो एक कल्चर है। फिर उसके बाद जो इकोनॉमी पे आपने बात की थी ना, वो तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू। मतलब अभी मैंने अजवत भाई को भेजी भी थी, वो जो मैंने पूरी जितने भी मैंने रेज़र खरीदे थे, सॉरी ब्लेड्स खरीदे थे, उन सब का मैंने ब्रेकडाउन पर ब्लेड कॉस्ट भी मैंने मुझे कैलकुलेट की थी। the same बिकॉज़ that इट्स picture is जस्ट made. ग्रैटिफाइंग। Yes, yes, because it's gratifying to see कि you're saving a lot on something जो कि एक तरह से for someone who aspires to remain clean shaven. Agreed. Of course, if you want to keep a beard, so Agreed. that's something else. Again, for somebody who aspires to remain clean shaven, it shouldn't be that expensive, right? और Exactly. एक आखिरी बात इसमें मैं ऐड कर लूँ, I think कोई YouTube चैनल था, I'm forgetting the name. उन्होंने एक पूरा चार्ट बनाया था of your savings in 1 year, in 2 years, in 5 years, in 10 years. और मतलब obviously वो डॉलर टर्म्स में था, but it was staggering the amount of money that you can save. और ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है जो शायद चुभती है, लेकिन उसके बाद इट्स स्मूथ सेलिंग। सर मेरे ख्याल से better thing would be we put forth the facts and figures. People can do the calculation for themselves. So generally speaking, so if I use Street Super Platinum, which I think it's a very nice, it's a mild blade. It's also sharp. I think it's a very comfortable shaving blade. So generally speaking, a packet of Street Super Platinum costs me around 100 rupees for 10 blades, which happens to be around 10 rupees per blade, right? So if you get 5 shaves from one blade, now people can do the maths. I'm really bad at maths. So if you get 5 shaves from 10 rupees, that is like, so that's 2 rupees. two rupees per shave. That's peanuts, yeah. That's dirt cheap, right? So why do you want to? And the problem is, if you use a cartridge razor like a Gillette Mark 5, which has 5 blades, one cartridge replacement will cost you around 2,000 rupees, 1,500 rupees, and you only get 10 shaves maximum. That's what the company recommends. The company says, please change your cartridge after 10 shaves. So अगर आप, And really uncomfortable ones, by the way. sorry, Really uncomfortable shaves as well. वो 10 हाँ shaves सही है, में से शायद 2 हैं जो actually comfortable है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So अब if you do the maths with the Gillette Mark 5, you're basically paying 150 rupees per shave. With Treat Super Platinum, you're only paying 2 rupees per shave. That's a massive difference. सर 2 रुपए में अब टॉफी नहीं आती। सर टॉफी भी नहीं आती एग्जैक्ट, और आपको क्लीन शेव मिलती है और आप चिकने लगते क्लीन शेव मिल रही है। हो. या एग्री. अच्छा लेकिन आप लोग ये देखें कि हमारे मुल्क में, अब देखें सम फॉर एग्जांपल, मुझे एक बहुत अच्छी एक ब्लेड है जिसके बारे में मुझे अजवत खान साहब नियाजी साहब ने बताया था. उससे पहले मुझे इतना उसके बारे में नहीं पता था. फेदर ब्लेड, इट्स अ जापानीज ब्लेड, वेरी वेरी शार्प, अल्ट्रा शार्प. मुझे नहीं पता था पहले, तो खान साहब ने मुझे बताया था यार कि अली एक इस तरह ब्लेड है, फेदर ब्लेड, एंड इट्स वेरी शार्प, ट्राई द ब्लेड एज वेल. तो पहले तो आई कुडंट फाइंड दैट ब्लेड लोकली एनीवेयर नियर माय हाउस. फाइनली खान साहब को मैंने कॉल की, मैंने, खान साहब मुझे नहीं मिल रही, व्हाट शुड आई डू? ही सेड या गो टू अल फतह, दे कीप दिस इंपोर्टेड आइटम्स. सो देन आई फाइनली वेंट टू अल फतह and I bought a packet of feather blade which costed me around 350 rupees for 5 blades, if I'm not wrong. चले जो भी 365. प्राइस थी, लेकिन अच्छा मजे की बात थी, I by mistake I paired my feather blade with Mueller R41. उसके उसके बाद I had several cuts all over my face. लेकिन honestly speaking, उसके next time वाले shave में I was more careful. लेकिन that being said, I honestly think कि जो feather blade है, it's very sharp, but it's not anywhere as smooth as the Treat Super Platinum. And of course, look, I'm a Pakistani. I will always support Pakistani entrepreneurship.
इट्स अ गिवन थिंग। तो व्हाई नॉट, अगर पाकिस्तानी लोग एक अच्छी चीज बना रहे हैं तो व्हाई नॉट सपोर्ट देम। मैं आई ऑनेस्टली बिलीव कि अगर पाकिस्तान में एक अच्छी चीज बन रही है और ट्रीट सुपर प्लैटिनम, इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड ब्लेड। जो कोई मर्जी लोग कहते रहे, आई हैव यूज्ड ट्रीट सुपर प्लैटिनम, इट्स एन आउटस्टैंडिंग ब्लेड। It's on par with Gillette, 7 o'clock, Gillette, Durasharp, Gillette Silver Blue. Well, Silver Blue is slightly better, I would say, लेकिन yeah, it's a very imperceptible difference. Do you get my point? But that being said, coming back to shaving soaps, the lack of availability of the shaving items, lack of availability of shaving good shaving razors. Yeah, we देखो कि in Pakistan people are ready to spend 5-6 thousand rupees on Gillette Mark 5. Imagine if they had access to Mueller R89 or Rockwell 6C for that matter. अब लोगों को ये भी नहीं पता कि if you buy Rockwell 6C, it's a cheaper variant of Rockwell 6S, लेकिन you get so much flexibility. It comes with 3 different base plates, so you can set it to a very mild setting, or you can also set it to a very aggressive setting. हाँ, लोगों को हमारे it's a very unfortunate situation. हमारे लोगों को unfortunately इन कमाल की चीजों के बारे में पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक और भी बदकिस्मती कि हमारे मुल्क से शेविंग कल्चर खत्म होना शुरू हो गया है। अच्छा खैर, अब दिस इज सब्जेक्टिव, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जब तक मैं अपने आप को शेव एवरी सिंगल डे ना करूं, आई डोंट नो व्हाई बट आई फील फिल्थी। मुझे शायद एक अर्सा हो गया है इस रूटीन में रहने का, आदत पड़ चुकी है। मैं सुबह उठ के आई हैव टू फॉलो माय डेली मॉर्निंग रिचुअल। So, Pele, first of all, I take shower, which helps to soften up your beard hair. And then I use a gentle, mild face wash, followed by a gentle exfoliator, followed by shaving off my beard. And then sometimes I use alum block as an astringent, which is also a natural antiseptic. Honestly, it's very cheap. But 200 रुपए के अंदर 1 kg alum आ जाता है। इसको उर्दू में फटकरी कहते हैं, बात फिटकरी या बिल्कुल। फटकरी, आई डोंट नो। लेकिन हाँ एलम जी, इतना फटकरी। एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है और फॉर शेविंग सोप्स, सॉरी शेविंग आफ्टर शेव स्प्लैश। लेकिन लोगों को पता नहीं, लोग समझते हैं यार इट्स समथिंग फ्रॉम द ओल्डन टाइम्स, फ्रॉम द medieval era, so let's not use it, although it's natural and it has more health benefits than using chemically formed aftershave lotions and whatnot. What do you guys think? अली भाई, आपकी सारी बात से मेरा एग्रीमेंट है टोटल। एक चीज जिसमें मैं बात करना चाहूंगा ना, वो ये है कि हमारे यहाँ पे आप सोप ढूंढने निकलोगे, चलो आपको सोप नहीं मिलेगा, अब तो खैर थैंक्स टू यू मिल जाता है टॉप क्वालिटी सोप। और अगर आप वो एक सेकंड के लिए इमेजिन करें वो भी नहीं है, तो आपको क्रीम्स बड़ी इजीली मिल जाएंगी, रेजर्स आप ढूंढोगे मिल जाओगे, ब्रश कहीं नहीं मिलेगा। आप हाँ ब्रश हाँ, वो ढूंढते यस, रहोगे, ब्रश नहीं वो मिलेगा यस। आपको। मेरा पहला एक्सपीरियंस, मैंने लिया लोकल जो हमारे बार्बर्स यूज करते हैं वो ब्रश, मैं उसको यूज करूं, उसके ब्रिसल से टूटी जाए, ओ यस। मैं ये क्या मजाक। फिर मैंने अल्फते से ये एक सिंथेटिक ब्रश उठाया, दैट वाज वेरी प्रिकली ऑन द स्किन। और आपको तो पता है, आपकी मेरी जो जिलेट वाला शेयरिंग रही है, प्लास्टिक वाला आता है, क्या कह रहे, सॉरी? वो जो जिलेट का प्लास्टिक वाला आता है, वो वाला। नहीं, वो एक और था, लेकिन था वो भी प्लास्टिक ओके हैंडल ही। ओके ओके। तो वो मैंने देखा हुआ जिलेट वाले की जो आप बात कर रहे हैं। तो खैर, वो जो ब्रशेस थे, अब आपको पता है मेरा सिंथेटिक्स की तरफ I एक can also हेट्रेड था। relate. I've used that Gillette plastic wala. बिल्कुल, मेरा भी पहला वही था, and it has no backbone, and I don't know how I used it, but we didn't know better. एग्जैक्टली। Sorry, I continue करें, sorry. अच्छा, पता है वैसे तो I completely agree with you, अजमत खान साहब, कि पाकिस्तान में ना we can't find good quality shaving brushes. अच्छा, मुझे शुक्र है लाइफ में मेरी खान साहब आ गए थे, तो खान साहब, अच्छा बाय द वे, खान साहब is the pro here. खान साहब knows this entire wet जी shaving thing inside out. यार, He is the actual सरापा guru. प्यार, Sir, Khan साहब is the actual wet shaving guru of सरापा Pakistan. प्यार। तो खान साहब ने मुझे एक बंदे का नंबर दिया था, और फिर उस बंदे को मैंने काफी आगे प्रोमलगेट किया था। उसके अलावा मैंने आई हैड टू गेट माय शेविंग ब्रश फ्रॉम अली एक्सप्रेस, Yaki's 28 mm. Although Khan Saab told me, please don't get 28 mm knot, it's a very massive one. Lekin as always, I didn't listen to him, and now I kind of regret. It's a very Khan Saab, it's a very massive knot, Although It is. it easily covers a massive area of my face, so it's really convenient. Lekin I think I'm missing out on all that. Acha, it's a proper experience. आप जो करते हैं lathering up, मुंह पे it exfoliates. It's a proper experience that you want to enjoy for longer bit. अब वो इतना बड़ा है कि मैं within 5, 6 या 10, 20 seconds में मेरा सारा experience वो चौपट हो जाता है।
I think the sweet spot in shaving brush is 24 not. I don't know what you guys think about it. Do you guys agree with me? क्या मैं ख्याल है अभी खिजर? थोड़ी सी मैं स्टोरी सुनाऊंगा। मुझे अब नहीं पता था कि देयर इज लाइक सो अगेन ब्लाइंडली बिकॉज इट वाज Yes, sir. रिलेटिवली Sorry to चीपर। interrupt you. तो आप मैंने थोड़ा सा माइक को अपने करो। जी अब बेहतर आ रही है। It's better now. Sorry. Go on. हाँ जी, मैंने ब्लाइंडली जो है ना बिकॉज इट वाज रिलेटिवली चीपर है क्योंकि मैंने प्रो रास्टो के सोप्स यूज कर लिए थे तो आई अज्यूम कि द कंपनी नोज व्हाट दे आर डूइंग। तो मैंने उनका जो वो ओमेगा ब्रांडेड जो उनका ब्रश है ना बोल्ड ब्रश वो मैंने Is मंगवा it? लिया था। I एंड अगेन I think you're covering the mic with your finger. आपकी आवाज आपने ना उंगली शायद माइक के ऊपर रखी हुई है। इज इट बेटर नाउ? अभी No. भी I think it's on the whole of the mic. ओके, नाउ इज इट Now बेटर? it's इट much वाज better. Now it's वर्किंग much बिफोर। better. It's much clearer. से Please go पहले on. भी चल रहा था, अब पता नहीं क्यों। अच्छा खैर, तो अब आई डिड नॉट नो दीज मेजरमेंट्स, मुझे नहीं पता था कि मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ। और वही फिर गुरु साहब से जब बात की कि विच ब्रश शुड आई बाय, तो ही टोल्ड मी कि और मुझे आपने भी बोला था कि 20 आई थिंक यू सेड 24 इज द स्वीट स्पॉट। तो मैंने कहा अच्छा मैं 24 ले लेता हूँ। एंड आई जस्ट casually assumed कि मैं अभी भी 24 26 ही यूज कर रहा हाँ. हूँ। Ajit bhai told me that I have been using a 28 for the last 8 months. So I should not get a smaller one because that would ruin everything. तो ये तो बात आपकी ठीक है, जो टेक्निकलिटीज मतलब आई यूज टू थिंक कि मैं एक्सपर्ट हूँ, बट द काइंड ऑफ टेक्निकलिटीज दैट अजय भाई possesses, I mean, I know it's it's unreal. unparalleled, यार. सर आप Honestly, लोगों का Khan क्या Saab, Agreed, है? I agreed. am forever indebted to you. For you have introduced me to so many nice things in shaving world. सर Khan Saab actually सर told me how to use, how to create good, nice, thick ladder. Now, Khan Saab has been my mentor for the past 5 6 months. Although I'm the one who's सर making It is shaving soap, ironic. but this guy knows It so is much more than I ironic. do. यही हाँ जी, मैं भी यही कहना चाहता। आयरॉनिक बात है कि शेविंग सोप बनाया आपने लेकिन इस्तेमाल करना जो है अजय भाई ने आपको सिखाया है। अच्छा, आई पता मीन है इट्स मजे की बात आयरॉनिक। बताऊं मैं? जब शुरू में खान साहब मुझसे शेविंग सोप परचेज करने आए थे तो खान साहब showed me his collection of shaving soaps. Man, this guy has a massive collection of shaving soaps. It's impressive, जी Khan Saab. It shows how passionate you are. It's an amazing thing. It's mind-boggling, yeah, to see somebody with such a massive shaving soap collection. But someday, सर आपका and प्यार I है। insist, please, you should show your collection to our audience as well someday. When you get सर time. ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर इंशाल्लाह सर। अच्छा मैं एक मज़े की बात बताऊँ, इतने सारे सोप्स यूज़ करने के बाद भी इफ आई हैव टू चूज़ वन सोप फॉर लाइफ, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ऑनेस्टली कि अली भाई मेरे मुँह पे बैठे हुए हैं। मैंने खिज़र से लड़की में भी जब भी बात की है, मैंने कहा यार आप क्यों बाहर जा रहे हो? आपके मुल्क में एक चीज़ इतनी ज़बरदस्त बन रही है। इफ आई हैव टू हम्म चूज़ वन Yeah, सोप फॉर that's लाइफ, मैं so अली kind भाई से of यही you, कहूँगा Khan Saab. सर That मेरी आप honestly, जो I am मर्ज़ी करें, touched. मेरी Yeah, लाइफ टाइम that's सप्लाई so जारी kind करें। of you. Thank you. That's और so kind दूसरी हाँ of जी, चीज़ ये प्लीज कोई सॉरी। जो सीखने की बात है ना, हम सारे एक-दूसरे से सीखते हैं। मैं अली भाई ने मुझे जितनी चीज़ें सोप्स के बारे में बताई हैं, कि कैसे बनते हैं, क्या इनकी रेशियो होती है, क्या लाइज़ हैं, क्या ऑयल्स हैं, इसके अंदर यूज़ होते हैं। मैं शायद जितना मर्ज़ी पढ़ लेता, मैं वो ना समझ पाता जो मुझे अली भाई ने 5 मिनट में समझा दी बात। ऑन द अदर हैंड Yeah, खिज़र he's भाई just being humbled right now. He knows a lot more than I do. नहीं, Khan नहीं, Saab, I नहीं love सर, मैं you. यकीन करें। ऑन द अदर हैंड खिज़र भाई से मेरी जब बात हुई तो खिज़र भाई जितने पैशनेट हैं इन चीज़ों को लेके, I बोथ खिज़र agree. भाई एंड अली भाई बोथ, मुझे पता है कि मैं अगर ये 2 इंसान है ना, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े भाई, मैं अगर इनके साथ एक 100 पेजेज़ की बुक भी शेयर करूँगा ना कि यार हाँ. ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है शेविंग के ऊपर, ये पढ़ के मुझे बताइएगा। विथिन 30 मिनट्स मुझे रिप्लाई आ जाएगा कि यार ये चीज़ ऐसी है, हमने पूरी पढ़ के समरी मेरे सामने है। तो ये ओवर टाइम चीज़ें जो है ना, बंदे के जब इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो बंदे को मज़ा आने लग जाता है उस I चीज़ के agree. अंदर। I agree. तो अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि for a younger audience, what tips do you guys want to give them? Suggestions? What do you think they should do? खिज़र भाई बताएँ Whether आप? we up. हाँ हाँ जी, आई थिंक ऑब्वियसली मतलब लेस देन अ ईयर एंड अ हाफ अगो मैंने पूरी पाकिस्तानी मार्केट छानी थी जस्ट टू सी के कुछ भी अवेलेबल है दैट्स एट पार, नॉट इवन बेटर बट जस्ट एट पार विद व्हाट इज आउट देयर। तो वो नहीं मिल रही थी। एंड अगेन वही बात है कि ये अगेन आई प्लीज ये आई थिंक अजय भाई भी यही सोच रहे होंगे कि आई डोंट वांट द व्यूअर्स टू थिंक
कि वी आर हम बस खुशामद करने आए हुए हैं या कुछ ऐसा कह रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। वी आई जेन्युइनली एंड आई श्योर अजय भाई कैन आल्सो रिलेट टू दिस, आई वाज टेकन अबैक बाय हाउ गुड दिस वाज, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ठीक है, इट्स गोइंग टू बी ओके, इट्स नॉट गोइंग टू बी बैड, इट्स गोइंग टू बी यूजेबल, बट इट्स नॉट गोइंग टू मैच टेलर ऑफ ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट या वो जो मैं यूज कर रहा हूँ बेहतर, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। बट व्हेन आई शेव्ड विद इट आई वाज लाइक, दिस is are you sure this is made in Pakistan? That was like my first instinct. तो वही बात है कि आई फील कि अब बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं और मेरे अंदर का पेट्रियट जो है वो इस बात पे एक तरह से जाग गया है कि नाउ वी हैव दीस थिंग्स अवेलेबल। मैं तो बल्कि अजय भाई को भी कह रहा था कि आई रियली होप कि अली भाई जो है वो इस बिकॉज यू आल्सो क्या कहते हैं आप तो मतलब आल्सो यू आर ऑब्वियसली मतलब आप तो बना रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आई ऑल्सो फेल्ट एट द मोमेंट कि सॉरी आई डू अपॉलोजाइज, वो एक डिस्ट्रैक्टिंग चीज आ गई थी। हाँ, तो आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट, बट बेसिकली वही बात कि जो पेट्रियटिज्म है वो एक तरह से निकलता है बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन यू आर लाइक, ओ इफ दिस कैन बी मेड इन पाकिस्तान तो इट्स ग्रेट। तो वही मैं कहूंगा कि a lot of people can now think locally, they can explore locally before they वही बात कि सबसे आसान लेने से पहले आप लोकली अब सोच सकते हो, आप देख सकते हो, एंड इट्स राइट ऑन पार with what's happening That's so abroad. kind So of so you. I That's think so it's sweet very of you. Thank validating, you. and I think yeah. Thank you so much, Shakir. That's really nice of you, yaar. That's really kind of you. Thank you. I'm genuinely touched. Thank you very much. आप दोनों ने But again, this is no आप दोनों ने Kushamad. मुझे I इतना उठा genuinely दिया है, love your product. इतना मुझे आप दोनों ने उठा दिया है, मैं अब वाउचर देने लगा हूँ सारों को। अच्छा, लेकिन अली भाई, आई जोक्स नो ये aside, आपका साइड ये क्वेस्ट है, लेकिन प्लीज ये कंटिन्यू करना प्लीज। यार मैं बिल्कुल मैं इसको बड़ा सीरियसली सोच रहा हूँ कि आई शुड एक्सपैंड दिस बिजनेस वेंचर, क्योंकि why not compete globally now? Okay, as far as I know, the shaving soap is not that bad. If I mass produce these shaving soaps now and I sell them on a global scale, I can, if not better than Pro Raso and Chela, I think they will perform on the same level. It's on par with them, right? You guys agree with me, don't you? Yeah. Agreed, So if agreed. I mass I do. produce these shaving soaps now on a commercial level, I think we can represent Pakistan in a very positive way. Pakistan has the capacity. Pakistan has the right people. We have Khan Saab, we have Khizr Saab. Right? The fact we have these wet shaving enthusiasts, these actual gurus, and honestly, Khan Saab ko to ji, hats off to Khan Saab. This guy can actually use a straight razor as well. मैं तो परेशान था। Oh my god. अच्छा, once I tried using a shave head, और उस दिन मेरे चेहरे पर हर जगह पे आई हैड कट्स। मैंने अपनी जिंदगी में आई हैव ओनली यूज्ड अ शेव हेड, आई थिंक 2 times मैक्सिमम। एक दफा क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू फिक्स माय साइडबर्न्स, सेकंड टाइम मैंने पूरी शेव करने की कोशिश की थी और मेरा चिन पे, मेरी मुस्टैच पे, हर जगह पे आई हैड इन्यूमरेबल कट्स। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि आई एम बेटर ऑफ यूजिंग म्यूलर R41। इट्स ओके। अच्छा, आई आल्सो हैव अ म्यूलर R89 इन माय कलेक्शन। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है कि sometimes I don't want to use an aggressive shaving razor. For those specific days, I use my Mueller R89. अब हो सकता है कुछ लोग जो हैं they don't want to keep 2 different shaving razors. उन लोगों के लिए I recommend get something like the Rockwell 6C if you're tight on budget. Otherwise, get a Rockwell 6S which is made out of stainless steel, and it's like an heirloom. It will last you forever. Now you can pass it on to your next generations as well. It's made out of stainless steel. So that's one thing I want people to keep in mind. अच्छा, मेरे साथ इनिशियली ये हुआ था कि मुझे तो ये पता भी नहीं था कि the R41 comes in a stainless steel version as well. तो जब मेरा वो रिजल्ट आ चुका था, तो मैंने लोगों की वीडियो देखना शुरू की, एंड देन आई रियलाइज दे आल्सो मेक अ स्टेनलेस स्टील वर्जन। तो मैं इतना आई वाज डिसहार्टेंड कि यार ये क्या है यार। आई कुड हैव गॉटन दैट स्टेनलेस, लेकिन चलो, इट्स ओके। एनीवे, आई थिंक इट वाज अ लवली कन्वर्सेशन विद बोथ ऑफ यू, और मेरे ख्याल से we will add some valuable content in people's lives, especially in Pakistan, hopefully. And honestly, guys, it was pleasure sharing this screen with you both. It was actually an honor being with sharing the screen with both of you. Thank you so much. अगर आप दोनों कोई ending note देना चाहें तो please go ahead. अली भाई, सबसे पहले तो एक बात ये कि आई एम थैंकफुल टू यू क्योंकि दिस वाज योर आइडिया। अरे तो यार, आई thank एम you. थैंकफुल टू यू कि आप हमारा भी आपने सोचा और हमारे जितने पाकिस्तानी इस टाइम भटके हुए हैं, गुमराह हैं, उनके लिए भी आपने सोचा। तो आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दैट।
एंड सेकेंडली मैं एंड पे सिर्फ इतना कहूंगा कि यार सिर्फ 1200-1500 की बात है, एक दफा ट्राई करें अली भाई का बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ एक बिल्कुल दफा ट्राई करें, बिल्कुल यू विल बिल्कुल लाइक I इट। थैंक यू। completely agree with you. Khizr Saab, what's your ending note? I think very similar. Just try it once. If you don't like it, I can't say this on behalf of Ali Bhai, again, if you don't like it, paise वापस. Ah, exactly. Basically, you will find plenty of buyers in Pakistan. Like if you get a safety razor and you don't like it, you can sell it to somebody else. I'm sure we will find plenty of buyers in Pakistan. If not, I'll buy it from you, yeah. Okay, why not? तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, हमारे सब व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो, गिविंग अस सो मच टाइम। खान साहब, आपने यू हैव एडेड सो मेनी न्यू थिंग्स इन माय लाइफ. This guy is a proper wet shaving guru. So is Khizr. Khizr is very passionate about his. He takes this shaving thing very seriously, and I love this about Khizr as well. You guys have a lovely day. It was lovely speaking to थैंक यू, both of you. Thank you. थैंक Goodbye. यू।